चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस जावा 8 की वीडियो सीरीज में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक ऑपरेशन या आई वुड से इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन स्ट्रीम एपीआई, राइट। इसमें कुछ बेसिक मेथड्स या इम्पॉर्टेंट मेथड्स आई वुड से विच इज़ अवेलेबल इन द स्ट्रीम एपीआई वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर ईच मेथड इन स्ट्रीम एपीआई, राइट। stream interface exists in java.util.stream, right? आप यहाँ stream टाइप करोगे stream, right? Here you can see java.util.stream, there is a stream interface, right? तो इसमें कुछ मेथड्स अवेलेबल है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। ओके, so I have already created a class, so let's start with the for each method first of all. So stream has provided a new method for each to iterate each element of the stream, right? तो सबसे पहले हम एक stream create करते हैं, right? So let's say int stream I am going to create int stream having a method is called of, जो var arg लेता है, right? So यहाँ बहुत सारे आप integer पास कर सकते हो, right? Kind of array पास कर रहे हो, and this guy is going to return us a stream itself, right? int stream. तो डायरेक्टली हम यहाँ चाहे तो फॉर एच मतलब मेथड चेनिंग या पाइपलाइनिंग वगैरह हमने डिस्कस किया था। डायरेक्टली यू डोंट नीड टू स्टोर इन द लोकल वेरिएबल, डायरेक्टली आई कैन कॉल फॉर ईच मेथड ऑन दिस। एंड फॉर ईच मेथड का देखोगे कि इसके अंदर क्या है, इंट कंज्यूमर है, राइट। तो इंट कंज्यूमर को आप देखोगे तो यहाँ पर सिंपल एक एक्सेप्ट मेथड टेक्स्ट इंटीजर एंड आर्गुमेंट रिटर्न नथिंग, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करना होगा, राइट। So here just I am going to provide not lambda but method reference, right? Method reference is just a replacement of lambda, right? Already हमने एक वीडियो में बात की थी। That's it. If I run, then it will print all the elements from the stream, and here you can see all the elements from the stream is getting printed, right? This is the first method for each, right? Let's move ahead. यहाँ पर मैं मार्कर दे देता हूँ ऐसा कुछ, ताकि every output will be separated, right? Now next method I would like to talk about the map, right? The map method is used to map each element of its corresponding result. Let's try to understand through an example, yeah? तो यहाँ पर हम एक नंबर लिस्ट लेते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। I would say list, sorry, arrays क्लास आपने सुना होगा, right? arrays, so arrays, right? arrays dot to list होता है, right? इससे हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। arrays you have to import first of all from java.util, okay? And now arrays class is having as list method, right? which takes var arg and argument। तो यहाँ मैं कुछ इंटीजर पास कर देता हूँ 1 5 6 8 8 7 8, right? 9 फिर 8 कर देते हैं, राइट। इस तरह से बहुत सारे नंबर, जितना नंबर उतना पास कर सकता है। दिस गाय इज गोइंग टू रिटर्न अस लिस्ट, आई वुड से नंबर लिस्ट, राइट। और इस पे हम मैप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। लेट्स से टेक अ बेसिक यूज केस कि ये जो लिस्ट है इसमें जितने भी नंबर्स है उसका स्क्वायर हमको निकालना है, राइट। एंड आई वांट टू मेक स्क्वायर ऑफ every element and I want back list itself, right? Then तो जो stream है उसके लिए क्या हो गया, input हो गया, and you have to call stream, right? and this guy is going to return us a stream integer, right? and here I am going to call map, of course map method we want to learn map। map में देख सो map is having function as an argument। function क्या है, फंक्शन एक फंक्शनल इंटरफेस है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको देना होगा। तो नंबर इक्वल टू नंबर में देता हूँ, राइट। नंबर लैम्डा बेसिकली दे रहा हूँ। तो फंक्शन में एक मेथड होता है जो इनपुट नंबर लेता है और उसको प्रोसेसिंग करके नंबर रिटर्न करता है, राइट। सो जस्ट आई हैव गिवन द लैम्डा implementation of that functional interface, right? Okay, we need to get back the square, right? So you have to do number into number, right? and then we are going to call collect method, right? collect method. What happened, number into stream map, what happened, why not I'm getting any suggestion, let me map, right? so function interface, and function interface here I'm going to provide
a lambda, right? So let's say n lambda n into n, right? And then I'm going to call collect, of course collect, and I don't know why I was not getting auto support letter before. The collectors dot to list कर देना है, right? to list to set to map, किसी भी आप सेट चाहते हो तो टू सेट करना है, लिस्ट चाहता हूँ तो ये क्या रिटर्न कर रहा है गाइज, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटर्न कर रहा है, राइट? सो आई वुड से स्क्वायर लिस्ट, राइट? एंड ऑफ कोर्स आई कैन यूज फॉर ईच लूप टू इटरेट दिस गाय, राइट? और सिंपली फॉर ईच मेथड मैं यहाँ कॉल कर देता हूँ इस पर, राइट? सो दैट आई विल इटरेट एंड चेक कि नंबर का स्क्वायर आया कि नहीं, राइट? सो हियर यू कैन सी I could see the square of every number, right? 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 8 का स्क्वायर 64, राइट? इसमें लेट्स से कि इफ़ यू वांट, यहाँ कोई रिपीटेड है क्या? यहाँ लेट्स से यहाँ रिपीटेड नहीं है, राइट? लेट्स से यहाँ मैं एक नंबर देता हूँ 5, राइट? 5 देता हूँ तो 25 टू टाइम्स आ गया इसमें, राइट? 2 टाइम्स 25 आपको देखने को यहाँ भी, लेकिन यूनिक स्क्वायर निकालना चाहते हैं, राइट? लिस्ट ऑफ यूनिक स्क्वायर नंबर्स, राइट? तो आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट मेथड भी कॉल कर सकते हो, समथिंग इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट, राइट? एंड आफ्टर दैट ओनली डिस्टिंक्ट स्क्वायर नंबर्स विल गेट, राइट? हर एक, नहीं तो दूसरा तरीका है कि टू सेट कर दो तो सेट रिटर्न करेगा तो ऑटोमेटिकली हो गया, बट डिस्टिंक्ट कॉल करना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा अच्छा है, राइट? सो दैट्स इट. सो हाउ टू मेक यूज ऑफ द मैप मेथड, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट हम बात करेंगे फिल्टर मेथड का. स्ट्रीम एपीआई में एक फिल्टर मेथड है. द फिल्टर मेथड इज यूज टू एलिमिनेट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया, राइट? लेट्स से कि हमारे पास लिस्ट ऑफ नेम्स है, राइट? यहाँ और लिस्ट ऑफ नेम्स है, राइट? हमारे पास लिस्ट ऑफ नेम्स, इसमें कुछ देख रहे हो, कुछ एम्प्टी नेम भी है, राइट? सो एम्प्टी है, सारे 3 एम्प्टी नेम्स है, राइट? तो हम फिल्टर का यूज करके क्या हम इसमें कितने एम्प्टी स्ट्रिंग है उसका काउंट निकालना चाहते हैं, राइट? सो दैट्स इजी टू डू दैट, राइट? सो आउट ऑफ लिस्ट वी कैन गेट द स्ट्रीम, राइट? सो स्ट्रीम को आपको कॉल करना है, राइट? स्ट्रीम कॉल करने के बाद आपको ऑफ कोर्स फिल्टर ही कॉल करना होगा. फिल्टर देखना चाहते हैं. इसमें प्रेडिकेट क्या रहा है? फंक्शनल आर्गूमेंट. तो प्रेडिकेट आपको क्या करना होगा? नेम, लैम्डा एक्सप्रेशंस का देना होगा. नेम, राइट? नेम इज एम्प्टी, राइट? जो स्ट्रिंग का मेथड है, राइट? इज एम्प्टी है तो हमें काउंट करना है, राइट? जितने भी हर एक एलिमेंट पर इज एम्प्टी हम चेक कर रहे हैं. यदि एम्प्टी है तो उसको काउंट में शामिल कर लो, राइट? एंड दिस इज गोइंग टू रिटर्न द count of empty elements from this list, right? Too easy. और तो यहाँ लिख दूंगा नंबर ऑफ empty strings इक्वल टू काउंट. सो ऑफ कोर्स ये तो बहुत छोटा लिस्ट है तो इजीली आप काउंट कर रहे हो 3, लेकिन लेट्स से कि 1 मिलियन है, राइट? इसमें 1 मिलियन नेम है, उसको काउंट करना है. तो स्ट्रीम इज़ वेरी पावरफुल इन दैट, राइट? स्ट्रीम यूजुअली यूज किया जाता है जहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स काफ़ी हाई हो, ह्यूज हो, राइट? लुक एट हियर 3 इज कमिंग आउट ऑफ दिस लिस्ट. तो 3 ऐसा नाम है जो एम्प्टी इसमें एडेड है, राइट? नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द फिल्टर, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड. I would like to talk about the limit, right? So limit method is used to reduce the size of the string, right? Let's say I'm going to use here something is called int stream, right? Int stream class है जो primitive data type से deal करता है, right? There is a method is called iterate, right? Which takes first as a seed, means a starting point, and second is the int unary operator, right? int unary operator क्या है? लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा इसके लिए क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस है. लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट इज 5, राइट? एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट n लैम्डा एक्सप्रेशन n प्लस 5, राइट? एंड गाइज यदि इसको इटरेट कर दोगे आप, इस पर फॉर ईच लूप लगा दोगे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम से प्रिंट करेगा. 5, 10, 15, 5 का टेबल प्रिंट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. दैट आई डोंट वांट. आई वांट टू लिमिट इट. तो लिमिट इसीलिए होता है. तो 10 टाइम्स मैं इसको
इटरेट करना चाहता हूँ, राइट। बेसिकली आई वुड लाइक टू ड्राइव द टेबल ऑफ 10 और लिमिट का रिटर्न टाइप देखोगे तो स्टिल इंट स्ट्रीम, तो डायरेक्टली फॉर ईच लूप आप यहाँ कॉल कर सकते हो, राइट। सो आई एम गोइंग टू कॉल फॉर ईच ओवर हियर, राइट। सो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू कॉल फॉर ईच ऑफ दिस, राइट। तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपको 5 का टेबल प्रिंट कर देगा, राइट, राइट। सो 5 10 से 50 तक प्रिंट कर दिया, टेबल प्रिंट कर दिया। एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज लिमिट, राइट। लिमिट नहीं प्रोवाइड करोगे, इट्स लेट्स से आई एम नॉट प्रोवाइडिंग a limit, and if I iterate then it will go in infinite loop, infinite number of times it will print, right। 5 10 12 5 10 15 इस तरह से 5 का टेबल infinite number of times, that I don't want, right। now let's move ahead and let's talk about the next method। next method I would like to talk about the sorted। the sorted method is used to sort the stream, right। let's try to listen through an example। let's say कि ये जो है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है क्या, ये सॉर्टेड ही लग रहा है, ठीक है। इसको अनसॉर्टेड मारते हैं, कम से कम अनसॉर्टेड हो। हाँ, आप लेट्स सॉरी ये नहीं, मेरे को एक लिस्ट चाहिए गाइस, एक लिस्ट चाहिए, नंबर का लिस्ट है, हाँ ये लिस्ट है, राइट। तो इस लिस्ट को लेट्स से कि मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्टेड में नहीं है, इसे सॉर्ट करना चाहता हूँ, राइट। तो आई हैव अ लिस्ट, आई विल कॉल सॉर्टेड मेथड। सबसे पहले स्ट्रीम कॉल करना है, सबसे पहले स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, उसका सॉर्टेड मेथड। देयर इज कपल ऑफ सॉर्टेड मेथड, राइट। पहला सॉर्टेड है जो डजंट टेक एनी पैरामीटर, और सेकेंड सॉर्टेड है जिसमें कंपेरेटर आर्गूमेंट लेता है। तो पहला जो कुछ आर्गूमेंट नहीं लेता है गाइज, तो ये क्या करेगा, ये आपको आपका जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसको नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, राइट। नेचुरल ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। लेट मी शो यू। तो इफ आई रन, दिस गाय इज गोइंग टू सॉर्ट नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर, राइट। जो भी लिस्ट है इसमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, राइट। बट समटाइम्स इफ यू वांट अस टू बी लिस्ट टू बी सॉर्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, देन आपको जो सेकेंड सॉर्टेड मेथड है वो आपको यूज करना होगा। लेट मी शो यू, जो कंपेरेटर आर्गूमेंट ले रहा है, राइट। सो हियर if I do sorted, right, sorted second comparator लेता है, right। if you look here, this guy takes comparator। a comparator is a functional interface which is having a single abstract method compare। तो इसका आपको लैम्डा लिखना होगा, राइट। तो मतलब इसको कस्टमाइज करना होगा। तो लैम्डा लेट्स से पहला नंबर, लेट्स से कि फर्स्ट नंबर क्या है n1 and second number is n2, any variable name you can give, and here you have to give lambda sign and you have to n2 dot compare to n1 ऐसे लिखना होगा, राइट। और असेंडिंग में है n1 dot compare to n2, right, and this will give you list of number in is descending order। let me call directly for each loop। इसके बाद जो भी होगा, let me show you। now this is in ascending order and now this is in descending order, right। so that's how basically sorted method works। now let's move ahead and let's see what else we can see in the stream API। now next method we are going to not method, but we are going to talk about the collectors। already we have seen like collectors a couple of times, already we have seen collectors over here to convert into the collection like list। collectors में टू लिस्ट, टू सेट, टू मैप, इस तरह के बहुत सारे मेथड्स है, राइट। बट व्हाट्स द यूज ऑफ कलेक्टर? कलेक्टर्स आर यूज टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग on the elements of a stream। collectors can be used to return collections like list, set, map, string, or any other data type as well, right। so let's try to understand through a couple of example, right। let's say I would like to extract all the names from this list which is non-empty, right। so how we can do that? so collectors will help us in that। so collectors dot stream, हर चीज़ को पहले stream में convert करते हैं, right। collectors dot stream and then of course we would like to do the filtering, right, filtering। और यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, name lambda expression आपको देना होगा, name is empty। तो ये empty वाला ले आएगा, तो I don't want empty, right। not empty यहाँ लगाना होगा, right, not empty। and of course we need to call the collect method on it। collect method, what happened? of course we need to call collect। why this auto support is sorry guys, not empty, not empty, here you have to give, and here we have to go to collect, right,
and after collect, that's your choice whether you want to collect elements in the list or set, right? So of course we will use collector over here, collectors यहाँ use करना है. Collector is just a class which provides a lot of utility method, right? To set आपको दे सकते हो तो set return करेगा, to list I want to return in the list, right? तो ये list return करेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रीम रिटर्न करे, लिस्ट रिटर्न करेगा, राइट? तो डायरेक्टली मैं यहाँ फॉर ईच लूप लगा देता हूँ, राइट, ताकि प्रिंट कर देगा. सो दैट्स द मैजिक ऑफ मेथड चेनिंग गाइस. सो एक ही लाइन में आपका कोडिंग हो जाता है, राइट? तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ, यहाँ तक लिस्ट ऑफ जो स्ट्रिंग आया उसको मैं इटरेट कर रहा हूँ, दैट्स इट. एंड इट विल नॉट बेसिकली it will take only non-empty name. Here you can see there is no empty name, all the non-empty name I have extracted, right? Now second use case, what we can do, second use case, let's say I would like to combine all the names using comma, right? So that is also easy to do, right? So all the names I would like to combine with comma, right? So here what I will do, यहाँ तक तो यही रहेगा, राइट? यहाँ कलेक्टर्स हमें यूज करना है, collectors and collectors has a joining method, right, which takes delimiter, right? delimiter यहाँ हम दे देते हैं और कॉमा दे देते हैं, राइट? delimiter कॉमा दे देते हैं, और delimiter कॉमा देने के बाद a joining method है, of course that is a terminal method, so it will return, after joining it will return you a string. So I say combined names, right? और इसे मैं प्रिंट करूँगा तो एक कंबाइंड नेम प्रिंट कर देगा गाइस. सारे नेम जो इसमें है, जो नॉन एम्प्टी है, सारे नॉन एम्प्टी नेम को लेगा और सारे नेम को, हर एक नेम को कॉमा सेपरेट कर देगा, एक स्ट्रिंग में डाल देगा, डंप कर देगा. सो व्हाट इज माय इंटेंशन टू डू दैट? सो इफ आई रन, देन यू सी it is giving all the non-empty name and every name is separated with comma, right? Now next, last but not the least, we'll talk about the something is called statistics, right? मैथमेटिक्स में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, राइट? एवरेज निकालना, मीन, मैक्स वगैरह, ये सब एवरेज, ये सब आता है स्टैटिस्टिक्स में. सो जावा 8 स्टैटिस्टिक्स कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस टू कैलकुलेट ऑल द स्टैटिस्टिक्स when stream processing is being done, right? एक बार stream processing हो गया तो उसके बाद उसका आप एवरेज, मीन, मैक्स, सम वगैरह निकाल सकते हो, राइट? सो टू मेक यू अंडरस्टैंड फॉर दिस, आई एम गोइंग टू टेक अगेन नंबर लिस्ट, राइट? यहाँ पर मैं नंबर लिस्ट लेता हूँ, फिर से स्ट्रीम कॉल करता हूँ गाइस. स्ट्रीम कॉल करने के बाद, स्ट्रीम कॉल करना है, उसके बाद आपको मैप टू कॉल करना है, मैप टू. तो मैप टू करोगे तो लेट्स से आई वुड लाइक टू मैप टू इन डबल भी आप कर सकते हो, दैट अप टू यू कि ये कैलकुलेशन आप डबल में करना चाहते हो या लॉन्ग में या इंटीजर में. आई वुड लाइक टू डू दिस थिंग्स इन लॉन्ग, राइट? सॉरी, इंटीजर. और ये क्या रहा है, ये फंक्शनल आर्गूमेंट आपको ले रहा है, राइट? टू इंट फंक्शन ले रहा है, राइट? अब यहाँ क्या करना है आपको, you have decided to get your statistics information in int, तो आपको map to int कॉल करना होगा. और उसके बाद map to int में आप जाकर देखोगे तो क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है, राइट? which is having only one method, right? which takes one input or return integer and output, right? so इसका implementation एज ए लैम्डा एक्सप्रेशन प्रोवाइड करना होगा. तो लैम्डा एक्सप्रेशन सिंपल मैं दे देता हूँ कि नंबर मैं ले रहा हूँ और नंबर मैं वापस कर रहा हूँ, nothing I am going to do, right? And now after that what I'll do, you have to call a method is called summary statistics, right? And of course this summary is going to return in the int summary statistics, right? यदि आपने यहाँ map to डबल लिया होता तो डबल summary statistics रिटर्न किया होता, या लॉन्ग लिया होता तो लॉन्ग summary statistics. And now this guy is going to return you a lot of information. Let me show you. Let's say I would like to get या इसका रेफरेंस का आप देखोगे तो क्या एवरेज निकालना है, राइट? एवरेज आप निकाल सकते हो, राइट?
उसके बाद एवरेज के बाद और भी चीज़ें निकाल सकते हो। क्या क्या निकाल सकते हो देखते हैं। सम निकाल सकते हो, मैक्स निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। गेट मैक्स निकाल सकते हो, मैक्सिमम नंबर कौन है लिस्ट इस स्ट्रीम में। फिर सॉरी गाइस, फिर लेट मी कॉपी SOP 2-3 टाइम्स मोर। हाँ, अब मैक्स, ऑफ कोर्स मैक्स है तो मीन तो होगा ही। गेट मीन है, मीन है, मीन मीन MIN है, मीन, राइट। देन ऑफ कोर्स वी कैन गेट सम, राइट। गेट काउंट भी, कितने नंबर्स है इसमें वो भी दे सकता है आपको, राइट। काउंटिंग इसमें कितने नंबर्स है। एंड गेट ऑफ कोर्स वी कैन गेट द सम एज वेल, राइट। और भी बहुत सारे गेट गेट करके आपने सर्च किया है आप, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स है इसमें, राइट। मेनली इतना ही मेथड्स है, राइट। नाउ इफ आई रन देन यू सी द आउटपुट, राइट। सो फर्स्ट इज द एवरेज, सेकेंड इज द मैक्स नंबर, इस लिस्ट में मैक्स कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, फिर मीन नंबर, फिर मीन के बाद क्या है, काउंट कितने नंबर्स है, और सम ऑफ द नंबर्स है। तो दिस काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स यू कैन फाइंड, राइट, using statistics feature which is added in Java 8, right. So that's all I wanted to cover in this video tutorial, guys. I hope you enjoy learning this video. यदि वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, राइट, आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। और यदि आपने मेरे चैनल के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।